So just see here, calculate the value of goodwill on the basis of 2 years purchase of last 3 years weighted average profit. ठीक है, profit of the last 3 years are as and weights are given. So profit देखिए for 2017 is 90,000, for 2018 rupees 1,20,000, and for 2019 rupees 1,50,000, and weights are given. For 2017 one weights are given, for 2018 two weights are given, and for 2019 three weights are given. So अब आपको करना क्या है, ये आपका डेटा है क्वेश्चन का. नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, okay, by weighted average profit. So you can take the screenshot or you can note it down on a paper. Okay students, so I'm coming to the question. So first of all, I think you all have noted down or not, just I need to ask. So see students, the question is over now. Now see the solution. As you all people are knowing that कि by weighted profit method how to calculate the goodwill. So सबसे पहले हम क्या करते हैं, ईयर लिखेंगे, ठीक है, 2017, 2018, 2019, right? Then we will write the profit. Profit for 2017 is 90,000, for 18 is 1,12,000, for 19 is 1,50,000, right? अब इसके बाद क्या है आपका, तो इसके बाद दिखा रहा है weight. So weight as per the question, for 2017 weights are given 1, for 18 weights are given 2, for 13 weights are given 3. Okay, now we have to calculate product. So how to calculate product? Profit into weight. Profit into weight is equal to product. So 90,000 into 1 is equal to 90,000. 1,20,000 into 2 will be 2,40,000. Now 1,50,000 into 3 will be 4,50,000, right? अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे, जैसा कि फॉर्मूले में है टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट, राइट? सो सी हियर, व्हेन वी आर गोइंग टू टोटल, सो इट इज कमिंग 0 0 लिख दिया हमने, 9 4 13 प्लस 5 18 का 8 कैरी ओवर 1 2 3 प्लस 4 7 7,80,000. Now 1 plus 2 3 plus 3 6. So total of weight is 6 and total of product is 7,80,000. So student, this is clear to all of you, and now you know that how to calculate weighted average profit. So formula is here. So just I am going to solve on the other screen. You see here, just you have to note down the goodwill is to be calculated on the basis of 2 years purchase of last 3 years profit. So 3 years profit का प्रोडक्ट हमने फाइंड कर लिया, अब हमें कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम यहाँ. ओके, सो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट. वेटेड एवरेज प्रॉफिट. ओके, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, हाउ टू कैलकुलेट? सो आपको पता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट, ओके, अपॉन टोटल ऑफ वेट, राइट? टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट. सो टोटल ऑफ प्रोडक्ट आपने कितना कैलकुलेट किया है, 7,80,000. सो 7,80,000. Now total of weight is 6. So 6, right? So 6 1 is 6, 6 3 is 18. So 1,30,000. 1,30,000 is coming your WAP, means weighted average profit. Now the formula to calculate the goodwill is weighted average profit into number of purchasing year. नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर, जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था. सो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपने निकाला, फाइंड किया 1,30,000. ओके,
सो ये हो गया 1,30,000। अब इनटू करेंगे नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर एज गिवन इन द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। सो अब गुडविल की वैल्यू आ गई 3,60,000। ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, so I think this is clear to all of you how to calculate goodwill. So this is Sir, with 2 lakh. Hello. wait. Sir, 2,60,000. Thank you for making correction for 2,60,000, 13 to the 26, right? So students, so now question is what is super profit method? तो देखो बेटा, सुपर का मतलब होता है एक्स्ट्रा, ठीक है। जनरली हर एक बिजनेसमैन प्रॉफिट अर्न करता है, बट किसका प्रॉफिट ज्यादा अर्न हो रहा है, परसेंटेज किसका ज्यादा अर्न हो रहा है, किसका कम हो रहा है, इसके बेसिस पे भी हम लोग गुडविल कैलकुलेट करते हैं। सुपर का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करना, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, ठीक है। सो एक्स्ट्रा प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? देखो, जितना प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, जितना प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट जो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि एटलीस्ट हमको इतना परसेंट, इतना अमाउंट प्रॉफिट होना चाहिए, 10% होना चाहिए, 12% होना चाहिए, व्हाटएवर, ठीक है। तो लेकिन अगर हमको उस प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को हम कहेंगे एक्स्ट्रा प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट, ठीक है। सो इसको हम एक लाइन में क्या कह सकते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लो कि सुपर प्रॉफिट का जो मीनिंग कैलकुलेट, अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपर प्रॉफिट, सो आप लिखेंगे इट इज excess profit, the excess of average profit, excess of average profit, it is excess of average profit over normal profit. और इक्वेशन के थ्रू अगर आप इसे शो करना चाहते हैं, ठीक है, इक्वेशन के थ्रू अगर दिखाना चाहते हैं तो आप ऐसे बताएंगे सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। सो देखो मीनिंग में क्या बता रहा है, हमने मीनिंग में लिखा इट इज एक्सेस एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, या ऐसे कह सकते हैं एक्सेस ऑफ, इट इज एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट कहलाता है, समझ में आया? या ऐसे कह सकते हैं सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस प्रॉफिट ऑफ एवरेज ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। नाउ सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, सेम मीनिंग को हमने पुट कर दिया इक्वेशन में कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या है ना। तो नॉर्मल प्रॉफिट पता करने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि नॉर्मल प्रॉफिट होता क्या है, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट तो आप लोग को पता है, एवरेज प्रॉफिट मींस होता है एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट, मतलब हमने अपने फर्म में एक्चुअली में कितना कमाया, हर साल जो मैं एवरेज 3 साल में जो मैं अर्न कर रहा हूं उसका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्या है। एवरेज प्रॉफिट निकालना हमने पिछले क्लासेस में आपको सिखाया है, जितने ईयर का एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे टोटल करके। अब रही बात नॉर्मल प्रॉफिट की, सो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है इसको अच्छे समझो। देखो जैसे कि दो बिजनेस फॉर्म मार्केट में है, जैसे मान लो क्लॉथ का बिजनेस है, कपड़े का बिजनेस है, रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस है, तो एक एनालिसिस के थ्रू हमें पता चलता है कि इफ वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट आवर मनी इन द रेडीमेड गारमेंट बिजनेस, सो एटलीस्ट वी विल बी गेटिंग दिस मच इनकम, जैसे 20% इनकम हमको मिलना चाहिए या 10% इनकम मिलना चाहिए। तो 10% क्या है, 10%, suppose that I have taken an example of 10% profit in the ready-made garments. So ये क्या बताता है 10%? ये बताता है कि it's a prevailing rate of income
इन द सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस इन द मार्केट, यानी कि कोई भी बिजनेस अगर से बिजनेस में इन्वेस्ट करता है पैसा रेडीमेड में, तो एटलीस्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 10% प्रॉफिट अर्न करेगा। सो वो 10% क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। बट रियल में एक्चुअल कितना अर्न किया, तो जब हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट उस नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा होगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट उस नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा होगा, तो उसे हम सुपर प्रॉफिट कहेंगे, क्योंकि हमने वो प्रॉफिट एक्स्ट्रा अर्न किया, ये हमारा ज्यादा होना चाहिए एवरेज, ठीक है। तो उस सुपर प्रॉफिट के आधार पे हम लोग अपने फर्म का पता करते हैं सुपर प्रॉफिट हुआ क्यों, क्योंकि हमारे फर्म की गुडविल अच्छी है, तब तो हमने नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा अर्न किया। तो इसीलिए हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड से भी गुडविल कैलकुलेट करते हैं। उसमें सबसे पहले हम सुपर प्रॉफिट पता करते हैं और फिर उसके बाद गुडविल पता करेंगे। तो आई थिंक कि यहाँ तक समझ में आया कि सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट इज द प्रिवेलिंग रेट ऑफ अर्निंग इन द मार्केट ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस, ठीक है। और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो हम अर्न करते हैं एक्चुअली, उस जितना हम ज्यादा अर्न कर रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट से, वो हमारा सुपर प्रॉफिट कहलाता है, ठीक है। तो नाउ सबसे पहले स्टेप हम क्या लेते हैं, यहाँ ध्यान रखना है हमको। स्टेप 1, first we calculate average profit, and now I am not going to tell again how to calculate average profit, just I will put here average profit. I think you all are knowing average profit, right? Second step is normal profit, okay? Normal profit, नहीं दिख रहा है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है भाई। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप माइक म्यूट कर लो आप लोग बेटा, आप लोग। सर वॉइस क्लियर नहीं है, सर वॉइस क्लियर नहीं। So now students, so first step is average profit, second step is normal profit, but question is कि how to calculate normal profit, क्योंकि अभी तक तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं, वो सबको पता है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे करेंगे उसका फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं। सो आप अच्छे से लिखो, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, ओके। हम कितना कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं, यानी एक ओनर कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया बिजनेस में, ठीक है। अब उस पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि सपोज दैट 10%, सो नॉर्मल यहाँ पे हमने लिखा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एनआरआर का मतलब होता है, एनआरआर मींस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, राइट। सो अब कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर मींस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को अल्टरनेटिवली हम लोग कहते हैं कि फेयर रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज आल्सो नोन एज फेयर रेट ऑफ रिटर्न, ओके, और एस्टिमेटेड रेट ऑफ रिटर्न, जैसा कि मैंने बताया था। तो इसको मैंने कॉमन वर्ड दिया है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसको अलग अलग नाम से भी आ सकता है, फेयर रेट ऑफ रिटर्न और एस्टिमेटेड रेट ऑफ रिटर्न, राइट। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर बाय 100 हम करेंगे तो हमारा क्या आएगा, वहां पर नॉर्मल प्रॉफिट आएगा, राइट। अब तीसरा स्टेप क्या करेंगे, अभी हम आपको बताएंगे कि ये कैसे आता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं बताऊंगा लास्ट में, पहले हम लोग सारा स्टेप लिख लेते हैं, ठीक है। अब आता है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट के लिए मैंने अभी बताया था, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ओके। सो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, राइट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे आता है पता है सबको, लिख देते हैं जितने लोग को नहीं मालूम होगा। टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ ईयर, या नंबर ऑफ ईयर, सॉरी, नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। जितने साल का एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है उतने साल के प्रॉफिट को टोटल करेंगे और उस नंबर ऑफ ईयर से 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो 3 ईयर के प्रॉफिट को टोटल करेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। अब आता है लास्ट स्टेप, गुडविल।
सो ये गुडविल जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं ऑलवेज ये गुडविल फर्म का आता है, याद रखिएगा आप लोग। सो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग, ये बताया था हमने, इट वुड बी गिवन इन द क्वेश्चन, परचेजिंग ईयर, ओके, परचेजिंग ईयर और टाइम्स, ये होता है फॉर्मूला। तो देखिए पहला स्टेप एवरेज प्रॉफिट, सेकेंड स्टेप नॉर्मल प्रॉफिट, थर्ड स्टेप सुपर प्रॉफिट एंड फोर्थ स्टेप गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। तो आपने एक पॉइंट कॉमन नोट किया होगा, चाहे वो एवरेज प्रॉफिट हो, whether it is एवरेज प्रॉफिट मेथड हो, चाहे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हो या सुपर प्रॉफिट मेथड हो, सब में कॉमन चीज आपने नोट किया होगा कि सब में लास्ट में गुडविल निकालने के लिए हम उस प्रॉफिट में, चाहे एवरेज प्रॉफिट होता है तो एवरेज प्रॉफिट, चाहे वेटेड है तो वेटेड, सुपर है तो सुपर, उसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर और टाइम्स एज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट। तो क्वेश्चन में लिखा होता है कि किस बेसिस पे निकालना है, कितने ईयर्स का परचेज होगा, कितने ईयर के नंबर ऑफ टाइम्स होंगे, इट वुड बी गिवन। तो ये आपका स्टेप होता है, आप इसे नोट डाउन अच्छे से कर लोगे। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो पढ़ना है, जिसके लिए दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि ये कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो दो तरीका होता है, या तो कैपिटल अकाउंट गिवन होगा, मतलब सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन होगा क्वेश्चन में, इसको कैपिटल इन्वेस्टेड के नाम से भी जानते हैं, कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया, ठीक है, या हम लोग को कैलकुलेट करना होगा। सो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, जैसे तुम बिजनेसमैन हो, तुम बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपना कितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किए हो, दैट इज व्हाट कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी जितना ओनर्स फंड होता है वो सारा कैपिटल एम्प्लॉयड में आता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड ओनर्स फंड प्लस एक चीज और होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। जैसे आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 10 लाख रुपीस की जरूरत है, आपके पास अपना खुद का 6 लाख रुपीस है और 4 लाख रुपीस आपने बैंक से लोन लिया, तो आपने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया, 10 लाख, राइट। सो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा, 10 लाख, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में तो अब हम कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला लिखवाने जा रहे हैं। तो आप लोग फटाफट इसको नोट कर लो और इसको फिर हम लिखवाते हैं। तो मैं पूछ, सो जस्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट कैपिटल एम्प्लॉयड। So there are so many ways to calculate capital employed. So capital employed is equal to, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का पहला तरीका है, फर्स्ट मेथड या जैसे भी, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, liabilities means only external or outside liabilities, generally आउटसाइड लायबिलिटीज का मतलब मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कह सकते हैं, करेंट लायबिलिटी, क्रेडिटर्स फॉर एग्जांपल। तो जितने भी क्रेडिटर्स होते हैं शॉर्ट टर्म, वो सब माइनस कर देंगे एसेट्स में से, तो आ जाएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी एसेट्स माइनस लायबिलिटी, या कह सकते हैं हम लोग एसेट्स माइनस लायबिलिटी। जैसा कि मैंने उस दिन आपको याद होगा नेट एसेट्स बताया था परचेज्ड ऑफ गुडविल में ना, परचेज गुडविल में एसेट माइनस लायबिलिटी, तो सेम वही फॉर्मूला, नेट एसेट्स को भी हम लोग कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। एक दूसरा तरीका और भी है, वही चीज जो अभी मैंने बताया, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कहते हैं हम लोग, तो इसको कहते हैं नेट एसेट्स। ये भी तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड ही होता है, ये भी दूसरा तरीका जो है, इसको भी हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड कहेंगे, ठीक है, इसको भी कैपिटल एम्प्लॉयड कहेंगे। अब एक थर्ड है कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स प्लस फ्री रिजर्व। देखो कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स प्लस
फ्री रिजर्व्स। ओके, तो एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल टू नेट एसेट हो गया। कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर तीसरा मेथड है। देखो ये सब और है, या तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लो या तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लो, ठीक है, या ये मेथड अप्लाई करो या ये करो चाहे ये करो। कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स मतलब जितने पार्टनर है सबने कितना पैसा लगाया है, प्लस साथ में कितना उनके पास रिजर्व पड़ा हुआ है, जो रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म लोन है तो साथ में प्लस कर लेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग बहुत कम बचा हुआ है। सो सी हियर, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल ऑफ एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, यानी कि लायबिलिटीज मींस आउटसाइड लायबिलिटीज और क्रेडिटर्स। दूसरा तरीका है एसेट्स माइनस लायबिलिटी कर दो, बात वही होगा और कुछ दिया नहीं होगा, तो नेट एसेट्स आता है। तीसरा, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग इफ एनी, अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग है तो। ठीक है, एक और होता है जिसके बारे में बता देता हूं, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है, अदरवाइज आई विल सेंड द वीडियो, और मैं इसको इरेज कर रहा हूं। एक होता है टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल। पहले से गुडविल रहता है बिजनेस में बैलेंस शीट में, तो उस गुडविल को टोटल एसेट्स, चूंकि गुडविल एसेट्स का पार्ट है, तो जो बैलेंस शीट का टोटल एसेट्स होगा उसमें अगर गुडविल ऑलरेडी लिखा हुआ है तो उस गुडविल के वैल्यू को पहले माइनस कर लेंगे, फिर उसके बाद लायबिलिटीज हम माइनस करेंगे। लायबिलिटीज मींस ऑलवेज, अगर आउटसाइड लायबिलिटीज ही होता है, अगर लायबिलिटीज के बारे में क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है कुछ अलग अलग, तो डायरेक्टली पूरा लायबिलिटी माइनस कर देंगे। तो लायबिलिटीज, तो ये है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, इसी को हम नेट एसेट्स भी कहते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड कह लो, चाहे इसको हम नेट एसेट्स कह लें, बात एक ही है। तो आप लोग को मैंने अल्टरनेटिव मेथड्स बताए कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के। दिमाग में सिर्फ इतना सेट रखो, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज होता है, राइट, हर केस में आपको यही मिलेगा। और दूसरा तरीका कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स प्लस फ्री रिजर्व्स, राइट, इससे ज्यादा आपका कुछ नहीं होता। मैंने जितना लिखवाया इसको आप नोट कर लो, मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ कि वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन विल बी कमिंग, तो आपको जो इंफॉर्मेशन दिया होगा उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कैलकुलेट करना है, राइट। तो यहां तक कर लो आप लोग अच्छे से। कर लेने दो, आप सभी लोग कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है। कुछ आपको कैलकुलेट करना है। एपी आई हैव गिवन 80,000 and capital employed in 10 lakhs, NRR is 5%. Find the value of goodwill on the basis of 2 years purchase of super profit. So सबसे पहले आप क्या करोगे, एपी दिया है, एनपी फाइंड करना है, एनपी फाइंड कर लो आप लोग, जो आएगा एनपी, एपी में से माइनस करोगे यू विल गेट सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, 2 से, यू विल गेट द गुडविल। फटाफट कर लो इसे। सो हमारे ख्याल से 30 60,000 आ रहा है। जया 60,000 60,000 किसका आया? 60,000 will be the answer. You can see here. Just I am going to do this side. Okay. So NP is equal to 10 lakh into 5%. So it will be 50,000. Okay. Now 5% because NRR is given. Now super profit is equal to AP minus NP. So AP is given itself 80,000. Now NP you have calculated 50,000. So super profit will be 30,000. Okay. Now you need to calculate goodwill. So goodwill will be आपका SP into number of purchasing year, right? So SP is 30,000 super profit and 2, so will be 60,000 answer. So you can